شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تم نیکی کی منزل تک نہیں پہنچ سکتے جب تک اپنی محبوب چیزوں میں سے راہ خدا میں انفاق نہ کرو، اور جو کچھ بھی انفاق کرو گے خدا اس سے بالکل باخبر ہے۔ بنی اسرائیل کے تمام کھانے حلال تھے سوائے اس کے جسے توریت کے نازل ہونے سے پہلے اسرائیل نے اپنے اوپر ممنوع قرار دے لیا تھا۔ اب تم توریت کو پڑھو اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو۔ اس کے بعد جو بھی خدا پر بہتان رکھے گا اس کا شمار ظالمین میں ہوگا۔ پیغمبر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ خدا سچا ہے، تم سب ملت ابراہیم کا اتباع کرو، وہ باطل سے کنارہ کش تھے اور مشرکین میں سے نہیں تھے۔ بے شک سب سے پہلا مکان جو لوگوں کے لیے بنایا گیا ہے وہ مکہ میں ہے، مبارک ہے اور عالمین کے لیے مجسم ہدایت ہے۔ اس میں کھلی ہوئی نشانیاں مقام ابراہیم ہے، اور جو اس میں داخل ہو جائے گا وہ محفوظ ہو جائے گا، اور اللہ کے لیے لوگوں پر اس گھر کا حج کرنا واجب ہے اگر اس راہ کی استطاعت رکھتے ہوں، اور جو کافر ہو جائے تو خدا تمام عالمین سے بے نیاز ہے۔ اے اہل کتاب، کیوں آیات الہی کا انکار کرتے ہو جبکہ خدا تمہارے اعمال کا گواہ ہے؟ کہیے اے اہل کتاب، کیوں صاحبان ایمان کو رائے خدا سے روکتے ہو اور اس میں کجی تلاش کرتے ہو جبکہ تم خود اس کی صحت کے گواہ ہو، اور اللہ تمہارے اعمال سے غافل نہیں ہے۔ اے ایمان والو، اگر تم نے اہل کتاب کے اس گروہ کی اطاعت کر لی تو یہ تم کو ایمان کے بعد کفر کی طرف پلٹا دیں گے، اور تم لوگ کس طرح کافر ہو جاؤ گے جبکہ تمہارے سامنے آیات الہی کی تلاوت ہو رہی ہے اور تمہارے درمیان رسول موجود ہے، اور جو خدا سے وابستہ ہو جائے سمجھو کہ اسے سیدھے راستے کی ہدایت کر دی گئی۔ ایمان والو، اللہ سے اس طرح ڈرو جو ڈرنے کا حق ہے، اور خبردار اس وقت تک نہ مرنا جب تک مسلمان نہ ہو جاؤ، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رہو اور آپس میں تفرقہ نہ پیدا کرو، اور اللہ کی نعمت کو یاد کرو۔ تم آپس میں دشمن تھے، اس نے تمہارے دلوں میں الفت پیدا کر دی تو تم اس کی نعمت سے بھائی بھائی بن گئے، اور تم جہنم کے کنارے پر تھے تو اس نے تمہیں نکال لیا۔ اور اللہ اسی طرح اپنی آیتیں بیان کرتا ہے کہ شاید تم ہدایت یافتہ بن جاؤ، اور تم میں سے ایک گروہ کو ایسا ہونا چاہیے جو خیر کی دعوت دے، نیکیوں کا حکم دے، برائیوں سے منع کرے، اور یہی لوگ نجات یافتہ ہیں۔ اور خبردار ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے تفرقہ پیدا کیا اور واضح نشانیوں کے آ جانے کے بعد بھی اختلاف کیا کہ ان کے لیے عذاب عظیم ہے۔ قیامت کے دن جب بعض چہرے سفید ہوں گے اور بعض سیاہ، جن کے چہرے سیاہ ہوں گے ان سے کہا جائے گا کہ تم ایمان کے بعد کیوں کافر ہو گئے تھے؟ اب اپنے کفر کی بنا پر عذاب کا مزہ چکھو۔ اور جن کے چہرے سفید اور روشن ہوں گے وہ رحمت الہی میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ آیات الہی ہے جن کی ہم حق کے ساتھ تلاوت کر رہے ہیں، اور اللہ عالمین کے بارے میں ہرگز ظلم نہیں چاہتا۔ زمین و آسمان میں جو کچھ ہے سب اللہ کے لیے ہے، اور اسی کی طرف سارے امور کی بازگشت ہے۔ تم بہترین امت ہو جسے لوگوں کے لیے منظر عام پر لایا گیا ہے۔ تم لوگوں کو نیکیوں کا حکم دیتے ہو اور برائیوں سے روکتے ہو، اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو، اور اگر اہل کتاب بھی ایمان لے آتے تو ان کے حق میں بہتر ہوتا، لیکن ان میں صرف چند مومنین ہیں اور اکثریت فاسق ہے۔ یہ تم کو اذیت کے علاوہ کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، اور اگر تم سے جنگ بھی کریں گے تو میدان چھوڑ کر بھاگ جائیں گے، اور پھر ان کی مدد بھی نہ کی جائے گی۔ ان پر ذلت کے نشان لگا دیے گئے ہیں، یہ جہاں بھی رہیں گے مگر یہ کہ خدائی عہد یا لوگوں کے معاہدے کی پناہ مل جائے۔ یہ غضب الہی میں رہیں گے اور ان پر مسکنت کی مار رہے گی، یہ اس لیے کہ یہ آیات الہی کا انکار کرتے تھے اور ناحق انبیاء کو قتل کرتے تھے، یہ اس لیے کہ یہ نافرمان تھے اور زیادتیاں کیا کرتے تھے۔ یہ لوگ بھی سب ایک جیسے نہیں ہیں۔ اہل کتاب ہی میں وہ جماعت بھی ہے جو دین پر قائم ہے، راتوں کو آیات الہی کی تلاوت کرتی ہے اور سجدہ کرتی ہے۔ یہ اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، نیکیوں کا حکم دیتے ہیں، برائیوں سے روکتے ہیں، اور نیکیوں کی طرف سبقت کرتے ہیں، اور یہی لوگ صالحین اور نیک کرداروں میں ہیں۔ یہ جو بھی خیر کریں گے اس کا انکار نہ کیا جائے گا، اور اللہ متقین کے اعمال سے خوب باخبر ہے۔ جن لوگوں نے کفر اختیار کیا ان کے مال و اولاد کچھ کام نہ آئیں گے، اور یہ حقیقی جہنمی ہیں اور وہیں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ یہ لوگ زندگانی دنیا میں جو کچھ خرچ کرتے ہیں اس کی مثال اس ہوا کی ہے جس میں بہت پالا ہو اور وہ اس قوم کے کھیتوں پر گر پڑے جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے اور اسے تباہ کر دے، اور یہ ظلم ان پر خدا نے نہیں کیا ہے بلکہ یہ خود اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ اے ایمان والو،
खबरदार गैरों को अपना राजदार ना बनाना, ये तुम्हें नुकसान पहुंचाने में कोई कोताही ना करेंगे। ये सिर्फ तुम्हारी मुशक्कत और मुसीबत के ख्वाहिशमंद है। इनकी अदावत जबान से भी जाहिर है और जो दिल में छुपा रखा है वो तो बहुत ज्यादा है। हमने तुम्हारे लिए निशानियों को वाज़ेह करके बयान कर दिया है अगर तुम साहिबाने अक्ल हो। खबरदार, तुम इनसे दोस्ती करते हो और ये तुमसे दोस्ती नहीं करते हैं। तुम तमाम किताबों पर ईमान रखते हो और ये जब तुमसे मिलते हैं तो कहते हैं कि हम ईमान ले आए, और जब अकेले होते हैं तो गुस्से से उंगलियां काटते हैं। पैगंबर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दीजिए कि तुम इसी गुस्से में मर जाओ। खुदा सबके दिल के हालात से खूब बाखबर है। तुम्हें जरा भी नेकी मिले तो इन्हें बुरा लगेगा और तुम्हें तकलीफ पहुंच जाएगी तो वो खुश होंगे, और अगर तुम सब्र करो और तकवा इख्तियार करो तो इनके मकर से कोई नुकसान ना होगा। खुदा इनके अमाल का अहता किए हुए है। उस वक्त को याद करो जब तुम सुबह सवेरे घर से निकल पड़े और मोमिनीन को जंग की पोजीशन बता रहे थे, और खुदा सब कुछ सुनने वाला और जानने वाला है। और उस वक्त दो ग्रोह ने सुस्ती का मुजाहरा करना चाहा लेकिन बच गए कि अल्लाह इनका सरपरस्त था और उसी पर ईमान वालों को भरोसा करना चाहिए। और अल्लाह ने बद्र में तुम्हारी मदद की है जबकि तुम कमजोर थे, लिहाजा अल्लाह से डरो, शायद तुम शुक्रगुजार बन जाओ। उस वक्त जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोमिनीन से कह रहे थे कि क्या ये तुम्हारे लिए काफी नहीं है कि खुदा 3000 फरिश्तों को नाजिल करके तुम्हारी मदद करे? यकीनन अगर तुम सब्र करोगे और तकवा इख्तियार करोगे और दुश्मन फिलफौर तुम तक आ जाएंगे तो खुदा 5000 फरिश्तों से तुम्हारी मदद करेगा जिन पर बहादुरी के निशान लगे होंगे। और इस इमदाद को खुदा ने सिर्फ तुम्हारे लिए बशारत और इत्मीनान क़ल्ब का सामान करार दिया है, वरना मदद तो हमेशा सिर्फ खुदाए अजीज व हकीम ही की तरफ से होती है, ताकि कुफ्फार के एक हिस्से को काट दे या इनको जलील कर दे कि वो रुस्वा होकर पलट जाएं। इन मामलात में आपका कोई हिस्सा नहीं है, चाहे खुदा तौबा कबूल करे या अजाब करे, ये सब बहरहाल जालिम है। और अल्लाह ही के लिए जमीन और आसमान की कुल कायनात है। वो जिसको चाहता है बख्श देता है और जिस पर चाहता है अजाब करता है। वो गफूर भी है और रहीम भी है। ए ईमान वालो, ये दुगना चौगना सूद ना खाओ और अल्लाह से डरो कि शायद निजात पा जाओ, और उस आग से बचो जो काफिरों के वास्ते मुहैया की गई है, और अल्लाह और रसूल की अताअत करो कि शायद रहम के काबिल हो जाओ, और अपने परवरदिगार की मगफिरत और इस जन्नत की तरफ सबकत करो जिसकी वुसअत जमीन और आसमान के बराबर है, और उसे इन साहिबाने तक़वा के लिए मुहैया किया गया है जो राहत और सख्ती हर हाल में इन्फाक करते हैं और गुस्से को पी जाते हैं और लोगों को माफ करने वाले हैं, और खुदा एहसान करने वालों को दोस्त रखता है। वो लोग वो हैं कि जब कोई नुमाया गुनाह करते हैं या अपने नफ्स पर जुल्म करते हैं तो खुदा को याद करके अपने गुनाहों पर इस्तिग़फ़ार करते हैं, और खुदा के अलावा कौन गुनाहों को माफ करने वाला है, और वो अपने किए पर जानबूझकर इसरार नहीं करते। यही वो लोग हैं जिनकी जज़ा मग़फ़िरत है और वो जन्नत है जिसके नीचे नहरें जारी हैं। वो इसी में हमेशा रहने वाले हैं, और अमल करने की ये जज़ा बेहतरीन जज़ा है। तुमसे पहले मिसालें गुजर चुकी हैं, अब तुम जमीन में सैर करो और देखो कि झुटलाने वालों का क्या अंजाम होता है। ये आम इंसानों के लिए एक बयान हक़ाइक़ है और साहिबाने तक़वा के लिए हिदायत और नसीहत है। खबरदार, सुस्ती ना करना, मसाइब पर महज़ून ना होना। अगर तुम साहिब ईमान हो तो सरबलंदी तुम्हारे ही लिए, और अगर तुम्हें कोई तकलीफ छू लेती है तो कौम को इससे पहले ऐसी ही तकलीफ हो चुकी है, और हम तो जमाने को लोगों के दरमियान उलटते पलटते रहते हैं ताकि खुदा साहिबाने ईमान को देख ले और तुम में से बास को शोधा करार दे, और वो जालिमीन को दोस्त नहीं रखता है। और खुदा साहिबाने ईमान को छांट कर अलग करना चाहता था और काफिरों को मिटा देना चाहता था। क्या तुम्हारा यह ख्याल है कि तुम जन्नत में यूं ही दाखिल हो जाओगे जबकि खुदा ने तुम में से जहाद करने वालों और सब्र करने वालों को भी ना जाना? तुम मौत की मुलाकात से पहले उसकी बहुत तमन्ना किया करते थे, और जैसे ही उसे देखा देखते ही रह गए। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो सिर्फ एक रसूल है जिनसे पहले बहुत से रसूल गुजर चुके हैं। क्या अगर वो मर जाएं या कत्ल हो जाएं तो तुम उल्टे पैरों पलट जाओगे? तो जो भी ऐसा करेगा वो खुदा का कोई नुकसान नहीं करेगा, और खुदा तो अनकरीब शुक्रगुजारों को इनकी जजा देगा। कोई नफ्स भी इज़्ने परवरदिगार के बगैर नहीं मर सकता। सबकी एक अजल और मुद्दत मुअय्यन है, और जो दुनिया ही में बदला चाहेगा हम उसे वो देंगे, और जो आखिरत का सवाब चाहेगा हम उसे उसमें से अता कर देंगे, और हम अनकरीब शुक्रगुजारों को जजा देंगे। और बहुत से ऐसे नबी गुजर चुके हैं
جن کے ساتھ بہت سے اللہ والوں نے اس شان سے جہاد کیا ہے کہ راہ خدا میں پڑنے والی مصیبتوں سے نہ کمزور ہوئے اور نہ بزدلی کا اظہار کیا اور نہ دشمن کے سامنے ذلت کا مظاہرہ کیا، اور اللہ صبر کرنے والوں ہی کو دوست رکھتا ہے۔ ان کا قول صرف یہی تھا کہ خدایا ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہمارے امور میں زیادتیوں کو معاف فرما، ہمارے قدموں کو ثبات عطا فرما اور کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ تو خدا نے انہیں معاوضہ بھی دیا اور آخرت میں بہترین ثواب بھی دیا، اور اللہ نیک عمل کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ ایمان والو، اگر تم کفر اختیار کرنے والوں کی اطاعت کر لو گے تو یہ تمہیں الٹے پاؤں پلٹا لے جائیں گے اور پھر تم ہی الٹے خسارہ والوں میں ہو جاؤ گے، بلکہ خدا تمہارا سرپرست ہے اور وہ بہترین مدد کرنے والا ہے۔ ہم انقریب کافروں کے دلوں میں تمہارا روب ڈال دیں گے۔ انہوں نے اس کو خدا کا شریک بنایا ہے جس کے بارے میں خدا نے کوئی دلیل نازل نہیں کی ہے، اور ان کا انجام جہنم ہوگا، اور وہ ظالمین کا بدترین ٹھکانہ ہے۔ خدا نے اپنا وعدہ اس وقت پورا کر دیا جب تم اس کے حکم سے کفار کو قتل کر رہے تھے، یہاں تک کہ تم نے کمزوری کا مظاہرہ کیا اور آپس میں جھگڑا کرنے لگے، اور اس وقت خدا کی نافرمانی کی جب اس نے تمہاری محبوب شے کو دکھلا دیا تھا۔ تم میں کچھ دنیا کے طلبگار تھے اور کچھ آخرت کے۔ اس کے بعد تم کو ان کفار کی طرف سے پھیر دیا تاکہ تمہارا امتحان لیا جائے، اور پھر اس نے تمہیں معاف بھی کر دیا کہ وہ صاحبان ایمان پر بڑا فضل و کرم کرنے والا ہے۔ اس وقت کو یاد کرو جب تم بلندی پر جا رہے تھے اور مڑ کر کسی کو دیکھتے بھی نہ تھے، جبکہ رسول پیچھے کھڑے تمہیں آوازیں دے رہے تھے، جس کے نتیجے میں خدا نے تمہیں غم کے بدلے غم دیا، تاکہ نہ اس پر رنجیدہ ہو جو چیز ہاتھ سے نکل گئی، اور نہ اس مصیبت پر جو نازل ہو گئی ہے، اور اللہ تمہارے اعمال سے خوب باخبر ہے۔ اس کے بعد خدا نے ایک گروہ پر پرسکون نیند طاری کر دی، اور ایک کو نیند بھی نہ آئی کہ اسے صرف اپنی جان کی فکر تھی، اور ان کے ذہن میں خلاف حق جاہلیت جیسے خیالات تھے، اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جنگ کے معاملات میں ہمارا کیا اختیار ہے۔ پیغمبر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ اختیار صرف خدا کا ہے۔ یہ اپنے دل میں وہ باتیں چھپائے ہوئے ہیں جن کا آپ سے اظہار نہیں کرتے، اور کہتے ہیں کہ اگر اختیار ہمارے ہاتھ میں ہوتا تو ہم یہاں نہ مارے جاتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ اگر تم گھروں میں بھی رہ جاتے تو جن کے لیے شہادت لکھ دی گئی ہے وہ اپنے مقتل تک بہرحال جاتے، اور خدا تمہارے دلوں کے حال کو آزمانا چاہتا ہے اور تمہارے ضمیر کی حقیقت کو واضح کرنا چاہتا ہے، اور وہ خود ہر دل کا حال جانتا ہے۔ اور جن لوگوں نے دونوں لشکروں کے ٹکراؤ کے دن پیٹ پھیر لی، یہ وہی ہیں جنہیں شیطان نے ان کے کیے دھرے کی بنا پر بہکا دیا ہے، اور خدا نے ان کو معاف کر دیا کہ وہ غفور اور حلیم ہے۔ اے ایمان والو، خبردار کافروں جیسے نہ ہو جاؤ جنہوں نے اپنے ساتھیوں کے سفر یا جنگ میں مرنے پر یہ کہنا شروع کر دیا کہ وہ ہمارے پاس ہوتے تو نہ مرتے نہ قتل کیے جاتے۔ خدا تمہاری علیحدگی ہی کو ان کے لیے باعث مسرت قرار دینا چاہتا ہے کہ موت و حیات اسی کے اختیار میں ہے، اور وہ تمہارے اعمال سے خوب باخبر ہے۔ اگر تم راہ خدا میں مر گئے یا قتل ہو گئے تو خدا کی طرف سے مغفرت اور رحمت ان چیزوں سے کہیں زیادہ بہتر ہے جنہیں یہ جمع کر رہے ہیں۔ اور تم اپنی موت سے مرو یا قتل ہو جاؤ، سب اللہ ہی کی بارگاہ میں حاضر کیے جاؤ گے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ تم ان لوگوں کے لیے نرم ہو، ورنہ اگر تم بدمزاج اور سخت دل ہوتے تو یہ تمہارے پاس سے بھاگ کھڑے ہوتے۔ لہٰذا اب انہیں معاف کر دو، ان کے لیے استغفار کرو اور ان سے امر جنگ میں مشورہ کرو، اور جب ارادہ کر لو تو اللہ پر بھروسہ کرو کہ وہ بھروسہ کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ اللہ تمہاری مدد کرے گا تو کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا، اور وہ تمہیں چھوڑ دے گا تو اس کے بعد کون مدد کرے گا؟ اور صاحبان ایمان تو اللہ ہی پر بھروسہ کرتے۔ کسی نبی کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ خیانت کرے، اور جو خیانت کرے گا وہ روز قیامت خیانت کے مال سمیت حاضر ہوگا۔ اس کے بعد ہر نفس کو اس کے کیے کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، اور کسی پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ کیا رضائے الہی کا اتباع کرنے والا اس کے جیسا ہوگا جو غضب الہی میں گرفتار ہو کہ اس کا انجام جہنم ہے اور وہ بدترین منزل ہے؟ سب کے پیش پروردگار درجات ہیں، اور خدا سب کے اعمال سے باخبر ہے۔ یقیناً خدا نے صاحبان ایمان پر احسان کیا ہے کہ ان کے درمیان انہی میں سے ایک رسول بھیجا ہے جو ان پر آیات الہی کی تلاوت کرتا ہے، انہیں پاکیزہ بناتا ہے
और किताब व हिकमत की तालीम देता है। अगरचे ये लोग पहले से बड़ी खुली गुमराही में मुब्तला थे, क्या जब तुम पर वो मुसीबत पड़ी जिसकी दुगनी तुम कुफ्फार पर डाल चुके थे तो तुमने ये कहना शुरू कर दिया कि ये कैसे हो गया? तो पैगंबर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दीजिए कि ये सब खुद तुम्हारी तरफ से है और अल्लाह हर शय पर कादिर है। और जो कुछ भी इस्लाम और कुफ्र के लश्कर के मुकाबले के दिन तुम लोगों को तकलीफ पहुंची है वो खुदा के इल्म में है, और इसीलिए कि वो मोमिनीन को जानना चाहता था और मुनाफिकीन को भी देखना चाहता था। इन मुनाफिकीन से कहा गया कि आओ राह खुदा में जहाद करो या अपने नफ्स से दिफा करो, तो उन्होंने कहा कि हमको मालूम होता कि वाकई जंग होगी तो तुम्हारे साथ जरूर आते। ये ईमान की निस्बत कुफ्र से ज्यादा करीब तर है और जबान से वो कहते हैं जो दिल में नहीं होता, और अल्लाह इनके पोशीदा उमूर से बाखबर है। यही वो लोग हैं जिन्होंने अपने मकतूल भाइयों के बारे में ये कहना शुरू कर दिया कि वो हमारी अताअत करते तो हरगिज़ कत्ल ना होते। तो पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे कह दीजिए कि अगर अपने दावे में सच्चे हो तो अब अपनी ही मौत को टाल दो, और खबरदार राह खुदा में कत्ल होने वालों को मुर्दा ख्याल ना करना, वो जिंदा है और अपने परवरदिगार के यहाँ रिज़्क़ पा रहे हैं, खुदा की तरफ से मिलने वाले फजल करम से खुश हैं। और जो अभी तक इनसे मुल्हिक नहीं हो सके, इनके बारे में ये खुशखबरी रखते हैं कि इनके वास्ते भी न कोई खौफ है न हुज़्न। वो अपने परवरदिगार की नेमत, उसके फजल और उसके वादे से खुश हैं कि वो साहिबान ईमान के अज्र को जाया नहीं करता। ये साहिबान ईमान हैं जिन्होंने जख्मी होने के बाद भी खुदा और रसूल की दावत पर लब्बैक कही। इनके नेक किरदार और मुत्तकी अफराद के लिए निहायत दर्जा अजर अज़ीम है। ये वो ईमान वाले हैं जब इनसे बाज लोगों ने कहा कि लोगों ने तुम्हारे लिए अजीम लश्कर जमा कर लिया है, लिहाजा इनसे डरो, तो इनके ईमान में और इजाफा हो गया और उन्होंने कहा कि हमारे लिए खुदा काफी है और वही हमारा जिम्मेदार है। बस ये मुजाहिदीन खुदा के फजल करम से यूं पलट आए कि इन्हें कोई तकलीफ नहीं पहुंची और उन्होंने रिज़ाए इलाही का इत्तिबा किया, और अल्लाह साहिब फजल अजीम है। ये शैतान सिर्फ अपने चाहने वालों को डराता है, लिहाजा तुम इनसे न डरो, और अगर मोमिन हो तो मुझसे डरो। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुफ्र में तेजी करने वालों की तरफ से रंजीदा ना हो। ये खुदा का कोई नुकसान नहीं कर सकते। खुदा चाहता है कि इनका आखिरत में कोई हिस्सा ना रह जाए और सिर्फ अज़ाब अजीम रह जाए। जिन लोगों ने ईमान के बदले कुफ्र खरीद लिया है वो खुदा को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते और इनके लिए दर्दनाक अज़ाब है। और खबरदार ये कुफ्फार ये ना समझे कि हम जिस कदर राहत और आराम दे रहे हैं वो इनके हक में कोई भलाई है। हम तो सिर्फ इसलिए दे रहे हैं कि जितना गुनाह कर सके कर ले, और इनके लिए रुस्वाकुन अज़ाब। खुदा साहिबान ईमान को इन्हीं हालात में नहीं छोड़ सकता जब तक खबीस और तैयब को अलग अलग ना कर दे, और वो तुमको गैब पर मुत्तला भी नहीं करना चाहता। हाँ, अपने नुमाइंदों में से कुछ लोगों को इस काम के लिए मुंतखब कर लेता है, लिहाजा तुम खुदा और रसूल पर ईमान रखो, और अगर ईमान और तक़वा इख्तियार करोगे तो तुम्हारे लिए अजर अजीम है। और खबरदार जो लोग खुदा के दिए हुए में बुख्ल करते हैं, इनके बारे में ये ना सोचना कि इस बुख्ल में कुछ भलाई है, ये बहुत बुरा है। और अनकरीब जिस माल ने बुख्ल किया है वो रोज़े क़यामत उनकी गर्दन में तौह बना दिया जाएगा, और अल्लाह ही के लिए ज़मीन और आसमान की मिल्कियत है और वो तुम्हारे अमाल से खूब बाखबर है। अल्लाह ने इनकी बात को भी सुन लिया है जिनका कहना है कि खुदा फकीर है और हम मालदार हैं। हम इनकी इस मुहमिल बात को और इनके अंबिया के नाहक कत्ल करने को लिख रहे हैं, और अंजामे कार इनसे कहेंगे कि अब जहन्नुम का मजा चखो, इसलिए कि तुमने पहले ही इसके असबाब फराहम कर लिए हैं, और खुदा अपने बंदों पर जुल्म नहीं करता है। जो लोग ये कहते हैं कि अल्लाह ने हमसे अहद लिया है कि हम उस वक्त तक किसी रसूल पर ईमान ना लाएं जब तक वो ऐसी कुर्बानी ना करे जिसे आसमानी आग खा जाए, तो इनसे कह दीजिए कि मुझसे पहले बहुत से रसूल मौजज़ात और तुम्हारी फरमाइश के मुताबिक सदाकत की निशानी ले आए, फिर तुमने इन्हें क्यों कत्ल कर दिया अगर तुम अपनी बात में सच्चे हो। इसके बाद भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकजीब करें तो आपसे पहले भी रसूलों की तकजीब हो चुकी है जो मौजज़ात, मवाइज़ और रोशन किताब सब कुछ लेकर आए थे। हर नफ्स मौत का मजा चखने वाला है और तुम्हारा मुकम्मल बदला तो सिर्फ
कयामत के दिन मिलेगा। उस वक्त जिसे जहन्नुम से बचा लिया गया और जन्नत में दाखिल कर दिया गया वो कामयाब है, और जिंदगानी दुनिया तो सिर्फ धोखे का सरमाया है। यकीनन तुम अपने अमवाल और नफूस के जरिए आजमाए जाओगे, और जिनको तुमसे पहले किताब दी गई है और जो मुशरिक हो गए हैं सबकी तरफ से बहुत अजियतनाक बातें सुनोगे। अब अगर तुम सब्र करोगे और तकवा इख्तियार करोगे तो यही उमूर में इस्तेहकाम का सबब है। उस मौके को याद करो जब खुदा ने जिनको किताब दी इनसे अहद लिया कि इसे लोगों के लिए बयान करेंगे और इससे छुपाएंगे नहीं, लेकिन उन्होंने इस अहद को पसे पुष्ट डाल दिया और थोड़ी कीमत पर बेच दिया, तो ये बहुत बुरा सौदा किया है। खबरदार, जो लोग अपने किए पर मगरूर हैं और चाहते हैं कि जो अच्छे काम नहीं किए हैं इन पर भी इनकी तारीफ की जाए, तो खबरदार इन्हें अजाब से महफूज ख्याल भी ना करना। इनके लिए दर्दनाक अजाब है। और अल्लाह के लिए जमीन और आसमान की कुल हुकूमत है और वो हर शय पर कादिर है। बेशक जमीन और आसमान की खिलकत लैल व नहार की आमद रफ्त में साहिबान अक्ल के लिए कुदरत की निशानियां हैं। जो लोग उठते बैठते लेटते खुदा को याद करते हैं और आसमान और जमीन की तख्लीक में गौर करते हैं कि खुदाया तूने ये सब बेकार नहीं पैदा किया है, तू पाक बेनियाज है, हमें अजाब जहन्नुम से महफूज फरमा। परवरदिगार, तू जिसे जहन्नुम में डाल देगा गोया उसे जलील और रुस्वा कर दिया और जालिमीन का कोई मददगार नहीं है। परवरदिगार, हमने उस मनादी को सुना जो ईमान की आवाज लगा रहा था कि अपने परवरदिगार पर ईमान ले आओ, तो हम ईमान ले आए। परवरदिगार, अब हमारे गुनाहों को माफ फरमा और हमारी बुराइयों की पर्दापोशी फरमा और हमें नेक बंदों के साथ महशूर फरमा। परवरदिगार, जो तूने अपने रसूलों से वादा किया है इसे अता फरमा और रोज़े क़यामत हमें रुस्वा ना करना कि तू वादे के खिलाफ नहीं करता। बस खुदा ने इनकी दुआ को कबूल किया कि मैं तुम में से किसी भी अमल करने वाले के अमल को जाया नहीं करूंगा, चाहे वो मर्द हो या औरत। तुम में बास से हैं। बस जिन लोगों ने हिजरत की और अपने वतन से निकाले गए और मेरी राह में सताए गए और उन्होंने जहाद किया और कत्ल हो गए, तो मैं इनकी बुराइयों की पर्दापोशी करूंगा और इन्हें उन जन्नतों में दाखिल करूंगा जिनके नीचे नहरें जारी होंगी। ये खुदा की तरफ से सवाब है और उसके पास बेहतरीन सवाब है। खबरदार, तुम्हें कुफ्फार का शहर शहर चक्कर लगाना धोखे में ना डाल दे। ये हकीर सरमाया और सामान तैश है। इसके बाद अंजाम जहन्नुम है और वो बदतरीन मंजिल है। लेकिन जिन लोगों ने तक़वा इलाही इख्तियार किया उनके लिए वो बागात हैं जिनके नीचे नहरें जारी होंगी। खुदा की तरफ से ये सामान ज़ियाफत है और जो कुछ उसके पास है सब नेक अफराद के लिए खैर ही खैर है। अहले किताब में वो लोग भी हैं जो अल्लाह पर और जो कुछ तुम्हारी तरफ नाजिल हुआ है और जो इनकी तरफ नाजिल हुआ है सब पर ईमान रखते हैं, अल्लाह के सामने सर झुकाए हुए हैं, आयात खुदा हकीर सी कीमत पर फरोख्त नहीं करते। इनके लिए परवरदिगार के यहाँ इनका अज्र है और खुदा बहुत जल्द हिसाब करने वाला है। ए ईमान वालो, सब्र करो, सब्र की तालीम दो, जहाद के लिए तैयारी करो और अल्लाह से डरो, शायद तुम फलाह याफ्ता और कामयाब हो जाओ। शुरू नाम से अल्लाह के जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। इंसानों, उस परवरदिगार से डरो जिसने तुम सबको एक नफ्स से पैदा किया है और उसका जोड़ा भी उसी की जिन्स से पैदा किया है और फिर दोनों से बकसरत मर्द और औरत दुनिया में फैला दिए हैं। और उस खुदा से भी डरो जिसके जरिए एक दूसरे से सवाल करते हो और कराबतदारों की बेताल्लुकी से भी। अल्लाह तुम सबके आमाल का निगरां है। और यतीमों को इनका माल दे दो और इनके माल को अपने माल से ना बदलो और इनके माल को अपने माल के साथ मिलाकर ना खा जाओ कि ये गुनाह कबीरा है। और अगर यतीमों के बारे में इंसाफ ना कर सकने का खतरा है तो जो औरतें तुम्हें पसंद हैं 2, 3, 4 इनसे निकाह कर लो। और अगर इनमें भी इंसाफ ना कर सकने का खतरा है तो सिर्फ एक या जो कनीजें तुम्हारे हाथ की मिल्कियत है। ये बात इंसाफ से तजावुज ना करने से करीब तर है। औरतों को इनका महर अता कर दो, फिर अगर वो खुशी खुशी तुम्हें देना चाहें तो शौक से खा लो। और नासमझ लोगों को उनके वो अमवाल जिनको तुम्हारे लिए कयाम का जरिया बनाया गया है ना दो। इसमें इनके खाने कपड़े का इंतजाम कर दो और इनसे मुनासिब गुफ्तगू करो और यतीमों का इम्तिहान लो। और जब वो निकाह के काबिल हो जाएं तो अगर इनमें
रशीद होने का एहसास करो तो इनके अम्वाल इनके हवाले कर दो, और ज्यादती के साथ या उस खौफ से कि कहीं वो बड़े ना हो जाएं, जल्दी जल्दी ना खा जाओ। और तुम में जो गनी है वो इनके माल से परहेज करे, और जो फकीर है वो भी सिर्फ बकदरे मुनासिब खाए। फिर जब इनके अम्वाल इनके हवाले कर दो तो गवाह बना लो, और खुदा तो हिसाब के लिए खुद ही काफी है। मर्दों के लिए इनके वालिदैन और अकरबा के तरके में एक हिस्सा है, और औरतों के लिए भी इनके वालिदैन और अकरबा के तरके में से एक हिस्सा है। वो माल बहुत हो या थोड़ा, यह हिस्सा बतौर फरीजा है। और अगर तकसीम के वक्त दीगर कराबतदार, ईताम, मसाकीन भी आ जाएं, तो इन्हें भी इसमें से बतौर रिस्क दे दो, और इनसे नर्म और मुनासिब गुफ्तगू करो। और इन लोगों को इस बात से डरना चाहिए कि अगर वो खुद अपने बाद ज़ईफ और नातवा औलाद छोड़ जाते तो किस कदर परेशान होते। लिहाजा खुदा से डरें और सीधी सीधी गुफ्तगू करें। जो लोग जालिमाना अंदाज से यतीमों का माल खा जाते हैं वो दर हकीकत अपने पेट में आग भर रहे हैं, और अनकरीब वासिले जहन्नुम होंगे। अल्लाह तुम्हें तुम्हारी औलाद के बारे में वसीयत करता है कि लड़के का हिस्सा 2 लड़कियों के बराबर होगा। अब अगर लड़कियां 2 से ज्यादा हैं तो इन्हें तमाम तरके का 2/3 हिस्सा मिलेगा, और अगर एक ही है तो उसे आधा, और मरने वाले के माँ बाप में से हर एक के लिए 6ठा हिस्सा है अगर औलाद भी हो। और अगर औलाद ना हो और माँ बाप वारिस हो तो माँ के लिए 1/3 है, और अगर भाई भी हो तो माँ के लिए 6ठा हिस्सा है। इन वसीयतों के बाद जो कि मरने वाले ने की हैं, या इन कर्जों के बाद जो इसके जिम्मे हैं, ये तुम्हारे ही माँ बाप और औलाद हैं, मगर तुम्हें नहीं मालूम कि तुम्हारे हक में ज्यादा मुनफियत रसा कौन है। ये अल्लाह की तरफ से फरीजा है, और अल्लाह साहिब इल्म भी है और साहिब हिकमत भी है। और तुम्हारे लिए तुम्हारी बीवियों के तरके का निस्फ है अगर इनकी औलाद ना हो। बस अगर इनकी औलाद भी है तो इनके तरके में से तुम्हारा 1/4 हिस्सा है। इनकी वसीयतों या कर्जों के बाद और इनके लिए तुम्हारे तरके में से 1/4 हिस्सा है अगर तुम्हारी औलाद ना हो, और अगर तुम्हारी औलाद भी है तो इनके लिए तुम्हारे तरके में से 8वां हिस्सा है। इन वसीयतों के बाद जो तुमने की है, या कर्जों के बाद अगर कर्ज है। और अगर कोई मर्द या औरत अपने कलाला, मादरी भाई या बहन का वारिस हो रहा है, और एक भाई या एक बहन है, तो हर एक के लिए 6ठा हिस्सा है। और अगर एक से ज्यादा हो तो सब 1/3 में शरीक होंगे। इस वसीयत के बाद जो की गई है, या कर्जे के बाद, बशर्ते के वसीयत या कर्जे की बुनियाद विरसे को जरर पहुंचाने पर ना हो। यह खुदा की तरफ से वसीयत है, और खुदा हर शय का जानने वाला है, और हर काम को हिकमत के मुताबिक अंजाम देने वाला है। ये सब इलाही हुदूद हैं, और जो अल्लाह और रसूल की अताअत करेगा खुदा उसे उन जन्नतों में दाखिल करेगा जिनके नीचे नहरें जारी होंगी, और वो उनमें हमेशा रहेंगे। और दर हकीकत यही सबसे बड़ी कामयाबी है। और जो खुदा और रसूल की नाफरमानी करेगा और उसके हुदूद से तजावुज कर जाएगा, खुदा उसे जहन्नुम में दाखिल कर देगा, और वो वहीं हमेशा रहेगा, और उसके लिए रुस्वा कुन अजाब है। और तुम्हारी औरतों में से जो औरतें बदकारी करें, उन पर अपनों में से 4 गवाहों की गवाही लो, और जब गवाही दे दें तो उन्हें घरों में बंद कर दो, यहां तक कि मौत आ जाए या खुदा उनके लिए कोई रास्ता मुकर्रर कर दे। और अगर तुम में से जो आदमी बदकारी करे, इन्हें अजियत दो, फिर अगर तौबा कर ले और अपने हाल की इस्लाह कर ले तो उनसे एराज करो कि खुदा बहुत तौबा कबूल करने वाला और मेहरबान है। तौबा खुदा के जिम्मे सिर्फ उन लोगों के लिए है जो जहालत की बिना पर बुराई करते हैं और फिर फौरन तौबा कर लेते हैं कि खुदा उनकी तौबा को कबूल कर लेता है। वो अलीम व दाना भी है और साहिब हिकमत भी। और तौबा उन लोगों के लिए नहीं है जो पहले बुराइयां करते हैं और फिर जब मौत सामने आ जाती है तो कहते हैं कि अब हमने तौबा कर ली, और ना उनके लिए है जो हालत कुफ्र में मर जाते हैं कि उनके लिए हमने बड़ा दर्दनाक अजाब मुहैया कर रखा है। ईमान वालों, तुम्हारे लिए जायज नहीं है कि जबरन औरतों के वारिस बन जाओ, और खबरदार इन्हें मना भी ना करो कि जो कुछ उनको दे दिया है उसका कुछ हिस्सा ले लो, मगर यह कि वाज़ेह तौर पर बदकारी करें और उनके साथ नेक बर्ताव करो। अब अगर तुम इन्हें नापसंद भी करते हो तो हो सकता है कि तुम किसी चीज को नापसंद करते हो और खुदा उसी में खैर कसीर करार दे दे।
और अगर तुम एक zौजा की जगह पर दूसरी zौजा को लाना चाहो और एक को माल कसीर भी दे चुके हो तो खबरदार उसमें से कुछ वापस ना ले लेना। क्या तुम उस माल को बुहतान और खुले गुनाह के तौर पर लेना चाहते हो? और आखिर किस तरह तुम माल को वापस लोगे जबकि एक दूसरे से मुत्तसिल हो चुका है? और इन औरतों ने तुमसे बहुत सख्त किस्म का अहद लिया है। और खबरदार, जिन औरतों से तुम्हारे बाप दादा ने निकाह जमा किया है, इनसे निकाह ना करना मगर वो जो अब तक हो चुका है। ये खुली हुई बुराई और परवरदिगार का गजब और बदतरीन रास्ता है। तुम्हारे ऊपर तुम्हारी माएं, बेटियां, बहनें, फुप्पियां, खालाएं, भतीजियां, भांजियां, वो माएं जिन्होंने तुमको दूध पिलाया, तुम्हारी रिजाई दूध शरीक बहनें, तुम्हारी बीवियों की माएं, तुम्हारी परवरदा औरतें जो तुम्हारी आगोश में हैं, और इन औरतों की औलाद जिनसे तुमने दखोल किया है या अगर दखोल नहीं किया है तो कोई हरज नहीं है, और तुम्हारे फर्जंदों की बीवियां जो फर्जंद तुम्हारे सुल्ब से हैं, और दो बहनों का एक साथ जमा करना सब हराम कर दिया गया है, अलावा उसके जो इससे पहले हो चुका है कि खुदा बहुत बख्शने वाला और मेहरबान है।